بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ انگلش چینل میں مائیگرنٹس کی کشتی ڈوبی، 27 ہلاک، کم سن بچی اور حاملہ عورت بھی شامل۔ انگلش چینل سانحے کے بعد فرانس اور برطانیہ کے درمیان لفظی تکرار، 4 انسانی اسمگلرز گرفتار۔ صومالیہ کا دارالحکومت بم دھماکے سے ہل گیا، یونائیٹڈ نیشنز کا قافلہ نشانہ، 8 ہلاک، الشباب نے ذمہ داری قبول کی۔ یو اے ای ترک معیشت کو سہارا دینے کے لیے $10 بلین لگائے گا، طیب اردوان سے شیخ محمد بن زید کی ملاقات کے بعد اعلان۔ ایران اور IAEA نیوکلیئر مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، جلد سمجھوتا ہوگا۔ صہیونی نظام ٹوٹنے کی آوازیں سن رہے ہیں، اسرائیل آہستہ آہستہ تباہ ہو جائے گا، بسیج فورس کے کمانڈر کو یقین۔ ایجپٹ میں 22 ملیٹنٹس کو موت کی سزا، ایران میں نوجوان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، عالمی تنظیموں کی تنقید۔ کرناٹک کے دھارواڑ میں 66 میڈیکل سٹوڈنٹس کووڈ پازیٹیو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ویکسین خریدنے کے لیے انڈیا کو $1.5 بلین دے گا۔ شریاس ایئر اور رویندر جڈیجا نے دیا ٹیم انڈیا کو سہارا، کانپور ٹیسٹ کے پہلے دن سکور 4 وکٹ پر 258۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک خطرناک بم دھماکہ ہوا جس سے پورا شہر ہل کر رہ گیا۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ کم سے کم 8 لوگ مارے گئے اور 17 دوسرے زخمی ہوئے۔ اس حملے میں یونائیٹڈ نیشنز کے ایک قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ الشباب تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ حملہ جمعرات کی صبح کیا گیا۔ دھماکے کے بعد ہر طرف دھواں پھیل گیا، فائرنگ کی بھی آوازیں سنائی دیں۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ انہوں نے 8 لاشیں گنی ہیں اور 17 زخمی ہیں، جن میں 13 اسٹوڈنٹس ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بارود سے بھری SUV گاڑی کے ذریعے ایک خودکش بمبردار نے یہ دھماکہ کیا اور یونائیٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ امین ایمبولینس سروس نے کم سے کم 23 لوگوں کو زخمی حالت میں باہر نکالنے کی اطلاع دی ہے۔ یہ بات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی کہ کیا یونائیٹڈ نیشنز کا کوئی عہدیدار یا ملازم مرنے والوں میں یا زخمیوں میں شامل ہے۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب یہ قافلہ ایک اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا۔ الشباب کے ترجمان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دھماکہ اس قدر طاقتور تھا کہ قریب میں ایک اسکول کی دیواریں گر گئیں، آس پاس کھڑی ہوئی کاریں بھی تباہ ہو گئیں۔ الشباب تنظیم کئی برسوں سے صومالیہ میں ایکٹیو ہے۔ وہ اپنی تشریح کے مطابق اسلامی قانون لاگو کرنا چاہتی ہے۔
अल-शबाब तंजीम अल-कायदा से निकल कर बनी थी। इससे पहले भी उसने मोगादिशु और दूसरे मकामात पर कई हमले किए हैं। इंग्लिश चैनल के समंदर में कश्ती डूबने से कम 27 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में एक मासूम बच्ची भी शामिल है। एक हामिला औरत भी मरने वालों में शामिल बताई गई है। यह हादसा इंतहाई सर्द मौसम में पेश आया। कश्ती में माइग्रेंट सवार थे जो बरतानिया जाने की कोशिश कर रहे थे। यह हालिया बरसों में इंग्लिश चैनल में पेश आने वाला सबसे खतरनाक वाकया है। फ्रांस के वजीर दाखिला ने बताया कि मरने वालों में 5 औरतें हैं। 2 लोगों को बचाया गया है। एक शख्स अब भी लापता है। शुरुआती खबरों में मरने वालों की तादाद 31 बताई गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 27 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल करने का काम करते थे। माइग्रेंट से मुताल्लिक़ आलमी इदारे ने कहा कि 2014 में जब से उन्होंने इंग्लिश चैनल में पाई जाने वाली सरगर्मियों और जानी नुकसान को रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तब से ये सबसे बड़ा सानहा है। इंग्लिश चैनल बरतानिया और फ्रांस के दरमियान एक तंग समंदरी रास्ता है जहां से दुनिया के कई जहाज गुजरते हैं। कई मुल्कों में जंगों, गरीबी और बुरे हालात की वजह से लोग दूसरे मुल्कों, खासतौर पर यूरोपीय मुल्कों में पनाह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए अपने आप को ख़तरे में डाल रहे हैं। ज़्यादातर मुल्कों का ताल्लुक़ जहां से ये रेफ्यूजीज़ आते हैं मिडल ईस्ट से है, जहां पर कई मसाइल पाए जाते हैं और बाज़ जगह लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। इससे पहले भी ऐसे सानहे पेश आ चुके हैं। फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस हादसे के लिए स्मगलर जिम्मेदार हैं। उन्हें मुजरिम भी कहा जा सकता है जो महज कुछ रुपए कमाने के लिए इराक, अफगानिस्तान, अफ्रीका और एशिया से रेफ्यूजियों को लाने की कोशिश करते हैं। अब तक इस साल छोटी कश्तियों के जरिए 25,700 लोग इंग्लिश चैनल को पार करके बरतानिया पहुंचे हैं। एक मीडिया इदारे ने ये फिगर्स जमा किए हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने इस सानहे पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान तकरार शुरू हो गई है। मैक्रोन ने कहा कि उनका मुल्क इंग्लिश चैनल को कब्रिस्तान बनने नहीं देगा। मैक्रोन ने बोरिस जॉनसन से बातचीत करते हुए कहा कि वो इंग्लिश चैनल को पार करने से लोगों को रोकने के लिए बरतानिया के साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों लीडर्स ने टेलीफोन पर बातचीत की। मैक्रोन ने जॉनसन से कहा कि वो घरेलू सियासी फ़ायदे के लिए माइग्रेंट बहरान को सियासी रंग ना दें। वो उम्मीद करते हैं कि बरतानिया ताउन करेगा। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट बहरान से उनकी सरहदों के करीब निमटना दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है। फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने इल्ज़ाम लगाया कि बरतानिया इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिशों को रोकने के लिए फ्रांस की मुनासिब मदद नहीं कर रहा है। जॉनसन ने कहा कि माइग्रेंट्स को रोकने के लिए फ्रांस को ज्यादा काम करना चाहिए। बरतानिया के दफ्तर खारजा के बाहर एहतजाज किया गया। एक एहतजाजी बैनर पर लिखा था कि इंग्लिश चैनल में और ज्यादा मौतें नहीं होनी चाहिए। इस दौरान फ्रांस के वज़ीर आज़म ने अपने वज़ीरों के साथ एक हंगामी मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। यूएई ने तुर्की में $10 बिलियन के फंड का ऐलान किया है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से अनकरा में मुलाकात की, जिसके बाद ये ऐलान किया गया। इस दौरे के साथ ही दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हुआ है। यूएई की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम ने बताया कि इस कदम का मकसद तुर्की की मईशत की मदद करना है और दोनों मुल्कों के दरमियान आपसी ताल्लुकात को बढ़ावा देना है। न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि इस फंड के जरिए खास तौर पर हेल्थ, फूड और एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। दोनों मुल्कों ने तकरीबन 10 साल की तलखियों के बाद ताल्लुकात सुधारने का फैसला किया है। तुर्की ने हालिया अरसे में पाकिस्तान और मलेशिया के जरिए एक इस्लामी मुल्कों का महाज बनाने की कोशिश की थी, जिससे सऊदी अरब और यूएई नाराज थे, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि ताल्लुकात में काफ़ी सुधार पैदा हो रहा है। मगरबी किनारे और कुद्स में इस्राएली फ़ौज ने 21 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। मकामी लोगों ने बताया कि फ़ौज ने तोबास टाउन में एक साबिक कैदी हामिद मुसलमानी को गिरफ्तार किया है। सुरेफ टाउन में भी 4 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। नाबलस और बाज़ दूसरे मकामात से भी गिरफ्तारियों की खबरें मिल रही हैं। कुद्स में इस्राएली फ़ौज ने 11 फ़लस्तीनियों को ईसाविया ज़िले में उनके घरों से गिरफ्तार किया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि 3 महीनों के दौरान 10,000 यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। इन यहूदी आबादकारों को इस्राएली पुलिस की सिक्योरिटी हासिल थी। ये लोग आमतौर पर मराकशी दरवाजे से मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल होते हैं।
जारी अपने इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को ईरान ने बहरीन में एक नाकाम दहशतगर्द हमले के लिए तेहरान को जिम्मेदार करार देने पर बहरीन पर तनकीद की है और कहा है कि मनामा की हुकूमत इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात के ज़रिए अपने जराइम को छुपा नहीं सकती। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने तेहरान में ये बात बताई। बहरीन ने दावा किया था कि उसने कई लोगों को गिरफ्तार किया जिनका ताल्लुक़ ईरान की दहशतगर्द तंजीमों से है। उनके पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। ये लोग दहशतगर्द कार्रवाई करना चाहते थे। ईरान ने कहा कि OIC मुसलमानों में इत्तेहाद के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर सकती है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने OIC के नए सेक्रेटरी जनरल को, जिनका नाम हुसैन इब्राहिम ताहा है, मुबारकबाद देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि OIC में काफ़ी सलाहियतें मौजूद हैं कि वो इस्लाम के आला उसूलों और क़दरों पर अमल को यकीनी बना सकती है। ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूक्लियर मसले को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन से इत्तेफाक किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने बताया कि उन्होंने IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी से एक समझौता किया है। उन्होंने तय किया कि जल्द ही वो समझौते को मजबूत करने के लिए और बाकायदा शक्ल देने के लिए एक और मीटिंग करेंगे। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि तकनीकी बातों को सियासी रंग देने के नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। हाल ही में IAEA के चीफ ने तेहरान का दौरा किया था। ये दौरा एक ऐसे वक्त हुआ जब 29 नवंबर से ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत होने वाली है। ग्रॉसी ने पीर को तेहरान पहुंचते हुए वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लाहियान से और ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ से मुलाकात की थी। ईरान में एक नौजवान की सजाए मौत पर अमल किया गया जिसे कत्ल का कसूरवार पाया गया था। जिस वक्त कत्ल का यह वाक़या पेश आया था उस वक्त वो 18 साल से कम उम्र था। उस सज़ा पर यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने तनकीद की है और फांसी पर भी वो तनकीद कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि इस सज़ा के ज़रिए ईरान ने अपनी आलमी ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी की है। 25 साल अरमान अब्दुल अली को तेहरान की एक जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उस पर अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। ईरान के अदालती ओहदेदारों ने बताया कि मकतूला के ख़ानदान ने आंख के बदले आंख के उसूल के मुताबिक उसे सज़ाए मौत देने का मुतालबा किया जिसे इस्लामी शरीयत में क़िसास कहा जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 11 अक्टूबर को ईरान से अपील की थी कि वो अब्दुल अली की सज़ा माफ़ कर दे जिसे 2014 में गिरफ्तार किया गया था। अगले साल यानी 2015 में उसे गजाला शुकूर के कत्ल का कसूरवार पाया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अब्दुल अली की सज़ा को एक आलमी जुर्म करार दिया है। ईरान की बसीज फोर्स के कमांडर ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान को इसराइल पर इंटेलिजेंस के मामले में बरतरी हासिल है। ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रज़ा सुलेमानी ने कहा कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने सेहयूनी निज़ाम के टूटने की आवाज़ें सुनी हैं और हम सेहयूनी निज़ाम की सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और हमें उस पर बरतरी हासिल है। उन्होंने मशहद शहर में बसीज फोर्स के अरकान से ख़िताब करते हुए ये बात कही। बसीज फोर्स एक वॉलंटरी फोर्स है। उन्होंने कहा कि यहूदियों का भी यकीन है, कई यहूदियों का यकीन है कि सेहयूनी निज़ाम 80 साल से ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकेगा और इनमें से 70 साल पूरे हो चुके हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि वो इंसानी हुकूक़ की हिफाजत को बड़ी अहमियत देता है। सऊदी अरब के सफ़ीर ने यह बात कही UN जनरल असम्बली की एक मीटिंग से ख़िताब करते हुए। सऊदी अरब के नुमाइंदे मोहम्मद अतीक ने कहा कि इस्लामी शरीयत की बुनियाद पर इंसानी हुकूक़ की हिफाजत को हम काफ़ी अहमियत देते हैं। इजिप्ट में 22 मिलिटेंट्स को मौत की सज़ा सुनाई गई है। एक अदालत ने जिन लोगों को सज़ा सुनाई उनमें एक साबिक़ पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। ये लोग पूरे इजिप्ट में 54 दहशतगर्द ऑपरेशंस के लिए ज़िम्मेदार थे। इनमें से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का कत्ल का इल्ज़ाम भी शामिल है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद इब्राहिम को हलाक करने की कोशिश की गई थी। बात इंडिया की। इंडिया के ताज़ा तरीन कोविड केसेस 9,119 रिकॉर्ड किए गए हैं। एक दिन पहले के मुकाबले में ये केसेस कुछ कम हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 396 मौतें हुई हैं। मुसलसल 48वें दिन 20,000 से कम कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,541 एक्टिव केसेस कम हुए। वज़ारत सेहत ने बताया कि अब तक 119 करोड़ 38 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। कर्नाटक के धारवाड़ में 66 मेडिकल स्टूडेंट्स कोविड-19 से मुतासर पाए गए हैं।
एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए इंडिया को $1.5 बिलियन कर्ज देने को मंजूरी दे दी है। जर्मनी में कोविड से होने वाली मौतें 1 लाख से ज्यादा हो गई हैं। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब जर्मनी में कोविड की चौथी लहर शुरू हो रही है। ओहदेदारों ने बताया कि अब तक वायरस से 1,119 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी से मिलने वाली खबरों में कहा गया कि खासतौर पर मुल्क के ईस्ट और सदर्न पार्ट्स में हॉस्पिटल्स पर काफ़ी दबाव है। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि वायरस से और ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है। क्रिकेट। इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन इंडिया ने 4 विकेट पर 258 रन बनाए। श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने अपनी हाफ सेंचुरीज के जरिए टीम इंडिया को सहारा दिया। श्रेयस अय्यर पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। ये मैच कानपुर में हो रहा है। अय्यर और जडेजा ने 5वें विकेट के लिए अब तक 113 रन की पार्टनरशिप की है। अय्यर 75 पर नॉट आउट हैं जबकि जडेजा 50 पर बैटिंग कर रहे हैं। एक वक्त इंडिया ने 145 पर अपने 4 विकेट खो दिए थे। आखिरी सेशन में इंडिया को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले ओपनर मयांक अग्रवाल 13 पर आउट हुए। छटेश्वर पुजारा ने 26 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे 35 पर आउट हुए। शुभमन गिल ने भी हाफ सेंचुरी बनाई, वो 52 पर आउट हुए। न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जेमिसन ने 3 विकेट लिए। टिम सूधी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। हाल ही में होने वाली T20 सीरीज में इंडिया ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंग्लिश चैनल में माइग्रेंट्स की कश्ती डूबी, 27 हलाक, कमसिन बच्ची और हामिला औरत भी शामिल। इंग्लिश चैनल सानेह के बाद फ्रांस और बरतानिया के दरमियान लफ्जी तकरार, 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। सोमालिया का दारुल हुकूमत बम धमाके से हिल गया, यूनाइटेड नेशंस का काफिला निशाना, 8 हलाक, अल-शबाब ने जिम्मेदारी कबूल की। UAE तुर्क मईशत को सहारा देने के लिए $10 बिलियन लगाएगा। तैयब एर्दोगान से शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की मुलाकात के बाद ऐलान। ईरान और IAEA न्यूक्लियर मसले को हल करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, जल्द समझौता होगा। सहयूनी निजाम टूटने की आवाजें सुन रहे हैं। इसराइल आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाएगा, बसीज फोर्स के कमांडर को यकीन। इजिप्ट में 22 मिलिटेंट्स को मौत की सजा। ईरान में नौजवान को फांसी पर लटका दिया गया, आलमी तंजीमों की तनकीद। कर्नाटक के धारवाड़ में 66 मेडिकल स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव। एशियन डेवलपमेंट बैंक वैक्सीन खरीदने के लिए इंडिया को $1.5 बिलियन देगा। श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने दिया टीम इंडिया को सहारा। कानपुर टेस्ट के पहले दिन स्कोर 4 विकेट पर 258।
یہ تھی آج کی خبریں. شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.